As a Congolese, every time I read Made in China, my mind tells me this is fake. And when I see Made in India, it tells me this is original. But it's not only me. I think this have been so rampant everywhere that if I take the case of Africa, beauty or makeup product, hair product or medical product, as soon as it's shown Made in India, they trust it much more. But is this really true? So I use a bunch of Indian product. For example, this mouse by an Indian company, this keyboard, this alarm, these headphones, this watch, this note, the pen, literally everything around me which I use now is made in India. And to be honest, I'm quite satisfied with the quality at the price at which I get it. But then how does that happen? How does it happen that Indians can make affordable stuff, but when Chinese make something affordable, it ends up being lower quality? Just look at this. China make good products also, which they end up selling parts to the US or any other country, which means they also know how to make good product. But when they make affordable product, the idea is this is going to be sold outside to people who cannot afford high quality things, and that makes us have to make low quality things because they will be okay with them since they just need something for now. Yet on the other hand, Indians, when they make affordable stuff, they do not make them to sell them outside, they still make them for Indians in India, and that makes that they will make that affordable thing to gain another client, so they can't fool him by a low quality thing because they know he will go away. So they have to give you something affordable, yet try as best as possible to give it to you on a good quality. That gap makes that Made in India definitely will be made in India because they're going to sell it to an Indian who needs assurance that I have to rely on this brand to buy from there next time. But when it's made in China, I probably don't even know the brand. I barely check brands of stuff which I buy from China. I just need the product, and the next thing which I know is probably it might not sustain to live for longer, so I will need to buy another one in the next 3 or 6 months, and that destroys the idea. But there is a possibility of buying a high quality also in China. Yet what interests me here is how Indians managed to go with the idea of making affordable things which can still be of good quality. And I've said about this in my other videos about how Indians literally captured the market of bikes of Africa by doing the same. They make affordable bikes but which are really strong, and they won the entire market of bikes in Africa. The same way they did with medicines. In the whole world today, India is the only plug when it comes to affordable medicine, because you are sure you will get good medicines on an affordable price, which somehow will give you again the same expectations you had on a very expensive medicine. And that's a very intelligent strategy which Indians use. And I think, to me, that makes India to be a much more reliable partner for Africa. Yet, to be honest, China have saved a lot who couldn't afford the very expensive product. Anyways, thanks so much for being here. Catch you next time. कहते हैं मेड इन इंडिया और चाइना में फर्क क्या है भाई? मेड इन इंडिया जो है ना, वो अफोर्डेबल जब चीज बनाते हैं ना किसी मतलब नॉर्मल कंट्रीज के लिए, फॉर एग्जांपल अफ्रीका के लिए या किसी और कंट्रीज के लिए, तो इंडिया वही चीज बनाता है, अच्छी एक चीज बनाता है, ओरिजिनल चीज बनाता है। कहता है जब मैं चाइना की चीज देखता हूँ तो मुझे फेक लगती है, और जब मैं मेड इन इंडिया देखता हूँ तो मुझे ओरिजिनल लगती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी चाइना वाले से बहुत अच्छी होती है। और चाइना जो है, चाइना भी अच्छी कहता है चीजें बनाता है, लेकिन वो यूएसए, यूरोप, अमीर कंट्रीज के लिए बनाता है, ना कि हम गरीब कंट्रीज के लिए। मैं तो ये बात बताता हूँ, ये पिछले कुछ सालों में अफ्रीका से इंडिया मार्केट छीनता जा रहा है, उसकी वजह बताऊँ। ये इंडिया एक अच्छी चीजें भेजता है। मैं बताता हूँ, इंडिया के माल की क्वालिटी अच्छी होती है और सस्ता भी होता है। मेन रीजन ये है भाई। मैंने उसकी तुम्हें बताऊं, एक बात ये भी है, इसकी मेन बात पता है क्या है? एक चाइना में बहुत घटिया माल है। मैं तुम्हें बताता हूं अफ्रीका में कामयाब क्यों होता जा रहा है इंडिया। पहले आज से कुछ 5 साल 7 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 4 साल पहले कह सकते हो आप, इंडिया हर चीज नहीं बनाता था, ये आप लोगों को भी पता है। ठीक है, अफ्रीका की मजबूरी होती थी, चाइना बल्क में बनाता था, वो हर चीज सस्ती देता था लेकिन 2 नंबर देता था। ठीक है, अब वही जो डिमांड जो चाइना से थी वो अब इंडिया पूरी कर रहा है, हर चीज बना रहा है, वो बहुत अच्छे दे रहा है। ठीक है, ये आप मानो या नहीं मानो, चाइना के प्रोडक्ट थोड़े सस्ते हैं लेकिन वो घटिया है। कहता है 6 महीने बाद चेंज करने पड़ते हैं, वो घटिया है। इंडियन प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन वो जो इंडिया अपने लिए चीज बनाता है ना, उसी तरह की उधर भी सेल करता है। ये डिफरेंस है। ये अफ्रीका में आज देखो रक्शे, ऑटोस इंडियन चल रही है, गाड़ी इंडियन चल रही है। मतलब वो कहता है वो उसने दिखाई है, वॉच मेड इंडियन है, मेरे हेडफोन्स इंडियन है, मेरे मतलब जो कहता है आसपास जितना भी सामान पड़ा वो मेड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट, ये कॉन्गो का था, रहने वाला कॉन्गोलीज था, और ये बोल रहा है कि कितना ज्यादा इंडिया फायदा पहुंचा रहा है। और दूसरी बात, बॉक्सर बाइक ने अफ्रीका में आग लगाई, कोई और बाइक लेता ही नहीं है। इंडिया की कंपनीज ने 50 चाइनीज कंपनीज, 200 चाइनीज कंपनीज, 200 चाइनीज कंपनीज को इंडिया की 2 कंपनीज ने गिराया, बजाज और टीवीएस। मतलब इन 3 कंपनीज ने बेड़ा गर्क उनका करके रख दिया उधर। तो ये चीजें देखो, अब हम अपने पाकिस्तान की आपको बात बताता हूं।
हूँ, इधर ज्यादा मोस्टली चीज चाइनीज आती है। इधर बाइक चाइना का बाइक लेते हैं, मैं आपको इतना घटिया मैं आपको मिल तो क्या जाएगा बताऊं। आपको अभी मतलब 80-90 हजार का, लाख तक वो भी चला, इंडियन 30,000 का, 35,000 का, इंडियन 30,000 का लो, बिल्कुल। इतने का आपको इधर मिल जाएगा। 60, लेकिन 70। आप लोगे ना, शुरू पे एक साल बहुत मस्त चलेगा, अगले साल मतलब हर महीने क्वेश्चन कराते रहोगे। जिस तरह दरिया से समंदर निकाल, सॉरी दरिया से मछली निकल के बाहर गिरती है ना, वो फड़फड़ाती है जिस तरह, उस तरह वो बाइक काउंटर है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कोई गारंटी नहीं होती भाई, कोई गारंटी घटिया तरीन माल मिल रहा होता है। आप बिलीव करो यार, इधर इंडिया के पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स आते थे, अभी भी उसकी डिमांड है। वो कहते हैं फेयर एंड लवली कौन सी चाहिए, पाकिस्तानी चाहिए इंडियन, अभी भी लोग ढूंढता है इंडियन फेयर एंड लवली को। आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन के ज्वेलरी की दीवाने थे पाकिस्तानी, वो आजकल कितना कुछ क्या कुछ आ रहा है। इंडियन माल बहुत अच्छा है, ठीक है थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन यकीन करो इतना उन्होंने बताया व्यू पॉइंट ऑफ अफ्रीकन्स, वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने अभी दिखाया, पहले सारा सामान दिखाया जो सारा उनके पास मेड इन इंडिया था। उन्होंने बताया कि जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होता है वो अफोर्डेबल होता है, मतलब कम पैसे का होता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, जबकि चाइना का जो चीजें खरीदते हैं अगर वो सस्ती होती हैं तो वो क्वालिटी में भी गंदी होती है, चलती नहीं। और उन्होंने ये भी, जैसे मैंने बोला ना, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया, पर वो ये बोल रहे थे कि वो अच्छी क्वालिटी की भी चीजें बनाते हैं, पर वो दूसरी जो है ना कंट्रीज जैसे यूएस जैसे मैंने बोला था ना, उनके लिए बनाते हैं, तो वहां पे अच्छी क्वालिटी देते हैं। पर जहां पे लोग जो है महंगी चीजें थोड़ी नहीं ले सकते, तो उनके लिए जब सस्ती बनानी होती है तो इनकी क्वालिटी भी घटिया हो जाती है। पर इंडिया क्या कोशिश करता है, वो सस्ती भी बनाने की कोशिश करता है, क्वालिटी भी अच्छी देने की ही कोशिश करता है, उनका ये एम होता है और वो वैसे ही काम करते हैं। इसलिए भैया हमें जो है वो कहते हैं अफ्रीकन को मेड इन इंडिया के साथ ज्यादा पार्टनरशिप करनी चाहिए, क्योंकि उनका माल अच्छा होता है। और फिर उसके बाद उन्होंने मेडिसिन के बारे में बताया कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो दवाइयां भी इतनी अच्छी देती है और वो भी अफोर्डेबल सस्ते दामों में, और मेरे ख्याल से और कोई देश है ही नहीं जो इस तरह से दे सकता है मेडिसिन सस्ती। भैया सस्ती मेडिसिन तो यूएसए में भी आती है, मेड इन इंडिया। तो भाई ये तो भैया ऐसे लगता है अफ्रीकन भी जो है वो भी इंप्रेस्ड है मेड इन इंडिया से, और अगर उनको चॉइस मिले मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना में से, वो मेड इन इंडिया चूज करते हैं। राइट, देखिए चक्कर ये है कि अगर वो कोई भी इंडियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, अफोर्डेबल है और वो चलता भी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया ने बनाया अपनी कंजम्पशन के लिए। हम जो भी चीज़ बना रहे हैं अपने लोगों के लिए बना रहे हैं, उसी को एक्सपोर्ट करते हैं, खुद भी यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वो चीज़ बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हम इंडियन मार्केट में कम्पीट करना है। अगर इंडियन मार्केट में ही खड़े नहीं हो सकते तो बाहर क्या बेचेंगे, वही माल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छी क्वालिटी का होता है। वो एग्जाम्पल दिया था मोटर बाइक का, जो आप बाइक्स ले रहे हैं, बाइक्स इंडियन कंजम्पशन के लिए आ रही हैं, अच्छी क्वालिटी है, बाहर भी बेचते हैं, वही चीज़ को बहुत अच्छी चलती है। चाइना का वही पॉइंट है, अगर तो कोई रिप्यूटेड कंपनी है वो बनवा रही है तो सब सही है, मगर अगर वो लोग खुद बना रहे हैं कि अफोर्डेबल आपको बना के देते हैं, वो सब फेक है, सब गड़बड़ है, चलता नहीं है। मेडिकेशंस में तो यस मोस्ट लाइकली अफ्रीका में जितनी मेडिकेशन आती है मेड इन इंडिया होती है, और उन्होंने देखा इट इज वेरी गुड। बीच में एक आध केस हुआ था इंडिया का, जहाँ पे इंडिया की घपले हुए थे कुछ सिरप से और आई ड्रॉप से, वहाँ पर भी बड़ी अब कार्रवाई की है मोदी जी ने, और सब पकड़े गए हैं जो गड़बड़ी करे थे। अदरवाइज इट इज ब्यूटीफुल, हर जगह यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं मेडिकेशन मेड इंडिया लिखा होता है बहुत सारी मेडिकेशन में। और चीज़ों में यस सबको पता है कि अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो इट्स ओके मेड इन चाइना, नॉन ब्रांडेड का घपला है। अब कई बार इंटरनेट में बड़ी सस्ती चीज़ें मिल रही होती हैं, यहाँ पे बड़े सारे चाइनीज रिटेलर्स भी आ गए हैं, वो बड़ी सस्ती चीज़ें बेचते हैं, और जब वो आती हैं टोटल पुअर क्वालिटी। ये फर्क तो पड़ता है। आपकी जैसे चाइना है वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन जैसे एग्जांपल है बहुत सारी चीज होगी, नहीं अच्छी क्वालिटी जो बनाती है वो तो ब्रांड्स के लिए बनाती है, लेकिन जब आप देखते हो दुकानों में चाइनीज माल कितना सस्ता मिल रहा है, जैसे लाइट्स हो गई, हाँ, तो उनका ब्रांड नहीं है। और नहीं शॉपकीपर खुद ही बोल देता है ये कि Chinese है। हाँ कोई गारंटी मतलब, और ऐसा मैंने खुद देखा है, जैसे जब लेते थे लाइट्स वगैरह जला ली, ठीक है, 1 घंटे बाद ही वो धीरे धीरे कोई चल भी जाती है। लाए थे हम दिवाली पे, वो भाई लटकाई जल गई, उसके फिर जब दोबारा ऑन करी नहीं वो जब उसमें से निकाल के उसमें दिखाई तो वो चल गई, लेकिन जब वो एक्चुअल जगह लगा के तो गायब थी। वही वाली बात है, सुबह चल रही थी, शाम को धप्पा हो गई। और दूसरी बात ये भी आती है कि इंडिया वाले जो चीज बनाते हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि बस चिपका दो, इंडिया वाले सोचते हैं कि चीज बनाएंगे अफोर्डेबल बनाएंगे, लेकिन वो लंबा चले। आप हर एक चीज देखो ना, आप एग्जांपल इसरो को ही देखो, चंद्रयान बनाया, चंद्रयान 3 बनाया, कितना वो कंपैरिजन में कितना कम बनाया, थोड़ा टाइम लग जाएगा जाने में, लेकिन हमें क्वालिटी चीज बनानी है और सस्ते बनाना। तो वही वाली मेंटालिटी है कि आपको देखिए इंडियन प्रोडक्ट्स क्वांटिटी वाला हो गया कि हम महंगी चीज भी नहीं बना रहे, लेकिन जो हम चीज बना रहे हैं उसको एक रीजनेबल क्वालिटी की बंदा अगली बार भाई ये बोले कि 20 रुपए और देके ढंग का ही ले लेते। क्योंकि आप देखना जब भी आप लोकल शॉपिंग करने जाओगे, खासकर आप चीजों की, तो लोकल शॉपिंग में आप पूछोगे भाई ये कहां का है, वो बंदा कहता है चाइनीज है, तो फिर आपको पता लगेगा इसका भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। और इंडियन प्रोडक्ट्स की कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी बनती जा रही है कि भाई अच्छी क्वालिटी होगी, मेड इन इंडिया है, और वो चीज है। तो वो चाइना का ये नहीं कह रहे कि वो घटिया क्वालिटी बनाता है, लेकिन उसका ये कि वो अफोर्डेबल चीजें बहुत सस्ते रेट पे बनाता है, तो उसका मास प्रोडक्शन होता है, तो लोग खरीदने वाले भी बहुत सारी चीज होती है, लोग खरीद लेते हैं यार, बसों में 50-50 रुपए के हेडफोन बिक जाते हैं, चाइनीज ले लेते हैं वो, लेकिन उनको भी पता है कि भैया चल गया नहीं चला तो नहीं चला। तो वही फर्क आ जाता है कि एक राउंड फिगर रेट में आपको बढ़िया क्वालिटी, और ये चीज मुमकिन हो गई, स्किलफुल इंडिया हो रहा है, असेंबलिंग इंडिया में हो रही है, धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हर एक चीज की होने लग जाएगी ना, बहुत फर्क पड़ेगा। कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसके अंदर आप कंज्यूमर देखो, इंडिया पाकिस्तान का मार्केट, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट। लेकिन एक चीज देखना कि जितने जो वो आप जितने प्रोडक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां भी खरीदती है, जैसे मान लो यूएस से बनवाता हुआ चाइना से कुछ भी कपड़े या टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स भी, वो इंडिया में बिकते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में बिकते हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है। जब इंडिया के प्रोडक्ट्स इंडिया में बिकने लगे तो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हुई, बहुत सारी चीजें फर्क पड़